Thank you, sir. With that, we move on to the panel discussion. We invite the dignitaries of the dais to but social development. Now, the developed countries have identified the importance of these driving forces. For a fast developing country like India, these factors as the biggest roadblock for the growth of the country. The theme, youth development, industrial responses, skills at a company or the industry. How does this one match that? Well, actually that's been the root of, I think given that goal, they've taken various measures, various steps to try and build that bridge between employability, skills, and that's the way to go forward. There are many challenges, and I think scaling up, there's a lot of trial and error happening right now. There are a lot of experimentations. I think the government is vocational skills, whereas 90% of our education in school or college at this point is vocation knowledge. So there is a need to connect, but I think beyond vocational skills specific options, avenues and trials going on at this point in time. It's a lot of hypothesis testing. It's a problem that has been acknowledged. It's a problem that is seeking a solution. Where in the education policy we have to make certain amendments. That earlier once we started this education policy, then so always our major emphasis was to make them graduate, either technical or general graduates. But whereas the need is that we want more these blue collar workers, those who can really manufacture Gujarat, they have provided that. We have also in Tamil Nadu, we have started that initiative. We are yet to finalize, but we have taken initiative that mobility should be provided. That once a person who has done this ITI training, after that is also very difficult and tough task. But okay, that can be taken. Once we go into the further details, then the another major thing should be that the And we request Honorable Minister Shri Sarabhai Patel to welcome Honorable Chief Minister with flowers. Thank you, sir. Gujarat is a state known for its enterprise. मंचस्थ सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं तो यहाँ सब गुजरात के संदर्भ में बताऊंगा। आज फिट था क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए तो बैंक में स्कोप है, और फिर जब होता नहीं था तो फिर इधर उधर कुछ न कुछ अपना गुजारा कर लेता था। और दुर्बलता पैदा हुई व्हाइट कॉलर जॉब, और जब से ये दिमाग में आया है कि भाई बड़ा आदमी वही खेलता है, वो बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन कलम और कागज का जिसका नाता है वो बहुत बड़ा आदमी है। ये एक मानसिकता बन गई है। फीटर है, वायरमैन है, प्लम्बर है, ठीक है, वो है। और समाज की इस मानसिकता के कारण अवेलेबल जो भी लोग हैं उससे भी हम अपना काम करवाने लगे, और जिसने हमारे क्वालिटी को भी डिक्रीज कर दिया, क्योंकि जो था उससे करवा लो भाई, चलिए कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे। हमें बेस्ट क्लास ड्राइवर नहीं मिलता तो जो है उसे चला लो, फिर 2 एक्सीडेंट हो ही जाएंगे, क्या होगा क्या करें। कोई भी काम हो, उस काम के कारण व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं हो सकता, तो सारी स्थिति बदलने का प्रारंभ होगा। और इसलिए भारत जैसे देश में फलाने भाई घर में है क्या,
तो हमारा नौकर भी क्या करेगा? अरे कोई समय है क्या, ऐसे आते हैं क्या, चलो 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 भागो। चौकीदार को समझा रहा था कि मैं गालिब हूँ, वो मानने को तैयार नहीं है गालिब था। तो गालिब को ऐसा होता है क्या? उसने उसको भगा दिया और खाना देकर के उस पगड़ी को खिलाना शुरू किया, जो खाओ। बादशाह को लगा इनको क्या हुआ है जी। मित्रों, ये सोच, ये डिग्री, यहाँ से अफसर लोग विदेश में उनका जाना आना होता रहता है स्टडी टूर के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, और बहुत बड़ी भारी मात्रा में जाते आते रहते हैं। तो एक बार मैंने तय किया कि जितने लोग विदेश जाके आए हैं जरा उन अफसरों को पूछे। सबने कहा खुद लेते, खुद खड़े होकर जाकर के पानी। मैंने कहा यहाँ आपके ऑफिस में प्यून नहीं आया तो क्या करते हो? बड़ी परेशानी का अनुभव होता है। अब हमारे यहाँ एक छोटी समस्या, लेकिन अगर दूसरा कहता मैंने 10th पास किया है, कोई कहता मैंने 12th पास किया है, अच्छा 12वीं पढ़े हैं, ठीक है, फिर तो बेटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उस समाज के उस तबके की बात कर रहा हूं। मैंने मित्रों मैनर भी क्यों ना मैनर सीखे। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी, उसको मैनर क्यों ना सिखाई जाए। आपने अगर यहाँ मौका मिले जो बाहर से आए हो, एक हमारे अहमदाबाद में प्रयोग चल, गुजरात के छोटे छोटे टाउन भी जी ऑटो की में जुड़ना चाहते हैं, और हम जी ऑटो में उन लोगों को लेते हैं जिसकी खुद की नहीं करेगा, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाएगा। ये जो हमें हमारे वचन देता है वो हमारे जी ऑटो का मेंबर बनता है। अब देखिए उससे क्या है, समाज जीवन में भी बदलाव आता है छोटी छोटी चीजों से। तो पूरे विश्व में हम हमारे यूथ पावर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दुनिया को मैथ्स और साइंस के टीचरों की, मिलियंस ऑफ टीचरों की आवश्यकता है, पूरे विश्व को जरूरत। और हम 12th के बाद, जो लड़का 12th में तय कर लेता है मुझे टीचर बनना है, उसके लिए वहां प्रवेश है। जो ये सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और कुछ नहीं बना इसलिए टीचर बन गया, वो कभी नर्सिंग के लिए, मिलियंस ऑफ नर्सिंग के लिए जगह खाली पड़ी है। सेवा भाव से काम करने वाले लोगों की जरूरत है। सेवा परमो धर्म, ये हमारी संस्कृति की विरासत है। हमारे नौजवानों में वो पूरे ग्लोबल थिंकिंग के साथ सोचना चाहिए। विश्व की क्या रिक्वायरमेंट है, 2015 तक क्या होगी, 2020 तक क्या होगी, 2025 तक क्या होगी। केमिकल इंडस्ट्री वालों को इंसान नहीं मिल रहा है। पालनपुर में जो केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए हमें क्लस्टर अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा जी। और इसलिए हम मान लीजिए हम टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं। अब ये सॉफ्ट स्किल के डेवलपमेंट का प्रमुख काम है, हिस्ट्री का प्राथमिक नॉलेज देने का काम है, मैनर सिखानी होती है, एक्टिविटी। कभी कभी क्या करते हैं हम, एक नौजवान को एक चीज सिखाते हैं, एक चीज सीखता है तो कभी कोई मार्केट डाउन हो गया तो उसकी रोजी रोटी का प्रश्न होता है। हमने कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम वो सहज रूप से, और कभी कभी क्या होता है हमने देखा होगा कि ट्रेडिशनल जो स्किल डेवलपमेंट होता है बड़ा अद्भुत होता है। अब देखिए किसी जमाने में ये मकान बना है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वो जो फैमिली ट्रेडिशन से जुड़ी चीजें हैं उसको हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं चौंक गया, बाद में मुझे बोलने की जब बारी आई, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी हम कहाँ गुजारा कर रहे हैं, चाइना सिंपल वे में काम होना चाहिए। तो मैंने उनको एक काम दिया, मैंने कहा एक काम करो, व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक उसको कितनी प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जन्म से मृत्यु तक कितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बहुत कम लोग इसके विषय में समझ पाते हैं। ज्यादातर हम देश और दुनिया को मीडिया के माध्यम से देखने की आदत हो गई है, और उसके कारण भी कठिनाई रहती है। ज्यादातर लोगों का ध्यान यही जाता है कि 11 से करें, हमारे नौजवानों को विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का लाभ कैसे मिले, इसके निर्णय आज किए। 2 दिन तक वो सेमिनार चलने वाला। अभी मैं आपके यहाँ आया 5 मिनट इसलिए मैं लेट हो गया कि मैं एक इनोवेशंस की एक सेमिनार में था।
जिन्होंने सत्ता को सेवा का अनेरा माध्यम बनाकर गुजरात की एक वैश्विक पहचान प्रस्थापित करी है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जिन्होंने आत्मसात किया, ऐसे अनस्टॉपेबल गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत Well, clearly a lot of interesting thoughts there. So should we then keep the forum open for our audience to have any questions? Thank you.